اخیافی بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا کب؟ جب کیا ہو؟ ایک ہو. اخیافی بہن چھٹا حصہ ملے گا جب کیا ہو؟ ایک ہو. اسی طریقے سے دادی کو بھی چھٹا حصہ ملے گا. دادی کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا جب میت کی ماں نہ ہو. میت کی کیا نہ ہو؟ ماں نہ ہو. اگر میت کی ماں موجود ہے تو پھر دادی محروم ہو جائے گی، پھر دادی کو کچھ نہیں ملے گا. اگر میت کی کیا موجود ہے؟ ماں موجود ہے تو پھر دادی کو کچھ نہیں ملے گا. اگر میت کی ماں موجود نہیں ہے، دادی موجود ہے، تو دادی کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. اسی طریقے سے نانی، وہ بھی اسی میں داخل ہے. نانی، اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر میت کی ماں موجود ہے تو پھر نانی محروم ہو جائے گی، نانی کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر میت کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن نانی موجود ہے تو پھر نانی کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ہی ملے گا. اب اگر نانی بھی ہے دادی بھی ہے لیکن ماں جو ہے انتقال کر گئی ہے، پھر وہ چھٹا حصہ ہی نانی اور دادی دونوں میں تقسیم کیا جائے گا. ان کو ایسا نہیں ہوگا کہ چھٹا حصہ دادی کو بھی دے دیا جائے اور چھٹا حصہ نانی کو بھی دے دیا جائے تو دونوں ملا کر تو ثلث کل بن جائے گا. ثلث کل میں یہ شمار نہیں ہوں گی. ہاں، اگر نانی بھی ہے اور دادی بھی ہے، دونوں حصہ لینے کے لیے آئی ہیں، تو پھر دادی اور نانی دونوں کو کیا کیا جائے گا؟ چھٹا حصہ ہی آدھا آدھا کر کے دے دیا جائے گا. لیکن یہ کب ہے؟ جب کہ کیا نہ ہو؟ ماں نہ ہو. اگر ماں ہوگی تو ہاں، پھر جو ہے دادی اور نانی محروم ہو جائے گی، دادی اور نانی کو کچھ نہیں ملے گا. پھر آگے بات سمجھ میں؟ بیٹی ایک ہے تو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. اب ایک بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، ساتھ میں پوتی بھی ایک ہے، پوتا بھی کوئی نہیں ہے، بیٹا بھی کوئی نہیں ہے. بیٹی کتنی ہے؟ ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے. ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے تو بیٹی کو کتنا دے دیں گے؟ نصف دے دیں گے. اب جیسے میت، اس نے چھوڑی ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بیوی. میت نے ایک بیٹی چھوڑی، ایک پوتی چھوڑی اور ایک بیوی چھوڑی. میت کا نام ہے مثال کے طور پر احسان. اس میں ہم دیکھیں یہ جو بیوی ہے، سب سے پہلے بیوی کو کتنا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ سمن ملے گا، کیونکہ میت کی اولاد ہے. میت کی کیا ہے؟ اولاد ہے، اس لیے کیا ملے گا بیوی کو؟ سمن ملے گا، 8واں حصہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ سمن. بیٹی کتنی ہے؟ ایک ہی ہے، لہذا بیٹی کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. بیٹی کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. نصف بیٹی کو ملا، اس کے بعد پوتی کو سدس ملے گا. کتنا ملے گا؟ سدس. یہ پوتی کو سدس کیوں ملا؟ یہاں پوتی کو سدس اس لیے ملا کیونکہ ایک بیٹی ایک پوتی ہے، ان دونوں کو جب اس کو نصف مل گیا، نصف میں سدس اگر ملائیں گے تو کل مال کا کتنا ہو جائے گا؟ اگر نصف کے ساتھ ہم سدس ملائیں گے، نصف کے ساتھ ہم نے کیا ملایا؟ سدس. جیسے مثال کے طور پر 100 میں نصف کتنا ہوگا؟ 50 کیا ہو جائے گا؟ نصف. تو 50 مل گیا کس کو؟ بیٹی کو.
اس کے بعد 100 کا سدس کتنا ہوگا؟ چھٹا حصہ 12.5 کتنا ہوگا؟ 8واں حصہ نہیں، چھٹا حصہ نہیں یہ سدس ہے، چھٹا حصہ 16 6 کے 96 ہے 16.66 16.16 اور پھر 0.66. اب جو ہے ہم نے دے دیا اس کو 16 اور 66. اب جو ہے یہ 50 اور 16 کتنا بن گیا؟ 66.60 66.66. 2/3 ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ 2/3. 2/3 کو کیا کہا تھا ان تمام میں سے؟ سلوسان. کیا کہا تھا؟ یہ سلوسان کو پورا کرنے کے لیے پوتی کو سدس ملے گا. اگر ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ نصف. اور پوتی کو کتنا ملے گا؟ سدس. جب یہ سدس اس کو مل گیا تو بیٹی اور پوتی کو کتنا ہو جائے گا؟ سلوسان ہو جائے گا. بیوی کو سمن ہے یہ کاٹ 12 میں 12.5 لیکن کیا تو مل نہیں رہا ہے تو باقی ہو جائے گا نا اس کھاتے میں کس میں باقی اسبا شسبا جو ہوں گے وہ ان کو جائے گا. ابھی ہم نے اسبا شسبا نہیں لکھے نا، تو یعنی بچنا چاہیے نا، گھٹ تو نہیں رہا ہے، گھٹنا نہیں چاہیے. گھٹے گا تو مسئلہ بنے گا، بڑھ گیا تو اگر بڑھ جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی دوبارہ لوٹا سکتے ہیں، اور اگر اسبا وغیرہ ہے تو ان کو دیں گے، اسبا نہیں ہے تو ان پہ لوٹائیں گے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر بیت المال ہے. لینے والے بہت سارے ہیں لیکن دینے والے کم ہیں، اس لیے گھٹنا نہیں چاہیے. تو بیٹی کو کتنا مل گیا؟ نصف. اور پوتی کو کتنا مل گیا؟ سدس. یہ پوتی کا حصہ سدس میں آ رہا ہے کب؟ جبکہ ایک بیٹی بھی ساتھ میں ہو. جبکہ کیا ہو؟ ایک بیٹی ہو تو بیٹی کو نصف ملے گا، اور پوتی بھی ہو ساتھ میں ایک تو پوتی کو کتنا ملے گا؟ سدس مل جائے گا. آگے بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے سدس حصہ ہے اللاتی بہن کا بھی. اللاتی بہن کس کو کہا تھا؟ ہاں، جو باپ شریک ہو. اللاتی بہن کس کو کہا تھا؟ جو باپ شریک ہو. اب اس کی بھی یہی صورت رہے گی. ہم یہاں سے ہم نے یہاں لکھا اس نے ایک چھوڑی ہے حقیقی بہن. میت نے کیا چھوڑی ہے؟ ایک حقیقی بہن اور ایک ہے اللاتی بہن. اللاتی تا اللاتی بہن، عین لام الف تا یا، اللاتی بہن. تو ایک حقیقی بہن اور ایک اللاتی بہن. بہن اگر ایک ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. لہذا یہ حقیقی بہن ہے، اس کو نصف مل جائے گا. حقیقی بہن کو کتنا مل جائے گا؟ نصف مل جائے گا. اب اس کو نصف مل گیا 100 میں سے 50. اب 50 تو نصف ہوا، لہٰذا اب یہاں ہم نے سلوسان کو پورا کرنا ہے. تو سلوسان کو پورا کرنے کے لیے اللاتی بہن کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا، چھٹا حصہ. کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ. وہی 16 اور 0.66. اب جب 50 اور 16 کو ملائیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ سلوسان. یہی سلوسان کو کیا کرنا تھا؟ پورا کرنا تھا سلوسان کو. آگے بیوی ہے وہ سمن، وہ سمن، اس کو سمن نہیں ہے. نہیں، بیوی آگے اس کو اب سمن نہیں رہے گا، اب اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ احسان کے جو ہے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، یہاں بہن بھائی ہیں. اب جو ہے بیوی جو ہے اس کو سمن نہیں رہے گا، بلکہ بیوی کو کیا ملے گا؟ یہ ربو پہ آ جائے گی. ہاں، یہ چوتھے حصے پہ آ جائے گی. یہ کون سے حصے پہ آ جائے گی؟ چوتھے حصے پہ آ جائے گی. اگر میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ چوتھا حصہ ملتا ہے. اولاد کے بالغ نابالغ ہونے کی کوئی شرط نہیں؟ نہیں، اولاد کے بالغ نابالغ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. میت کے مرنے کے دن ہی مطلب دفن کرنے کے بعد یہ لاگو ہو جاتا ہے. یہ اگر جیسے مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا،
नई नई शादी हुई थी, बाप का इंतकाल हुआ, बीवी हामिला थी। बीवी क्या थी? हामिला थी। चाहे वो 10 दिन की, 20 दिन की, वो उस दिनों का हिसाब नहीं है, कितने दिनों की हामिला वो नहीं, लेकिन हामिला थी बीवी। तो उसके लिए मसला बनेगा। उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए उलमा ने यह फरमाया कि पेट में जो बच्चा है, बच्चा या बच्ची, उसको बच्चे का हिसाब रख के उतना तरका छोड़ दिया जाएगा। पहली सूरत ये बयान की कि जैसे अगर पैदाइश के दिन ना करीब ही हैं और अभी विरासत तकसीम नहीं करें, तो जब बच्चा पैदा हो तो उस वक्त के बाद विरासत तकसीम करें। बच्चा पैदा होने के बाद विरासत तकसीम करे। तो एक बच्चा हुआ तो उसकी वैसे ही विरासत होगी, 2 बच्चे हुए वैसे होगी, अगर बच्ची हुई, 2 बच्चियां हुई तो उसी हिसाब से विरासत होगी, उस वक्त तकसीम करें। और अगर वो सूरत नहीं हो रही है बाद में तकसीम करने की, क्योंकि हो सकता है 9 महीने के बाद हो सकता है साल के बाद, 2 साल के बाद भी हो सकता है बच्चा पैदा, पेट में 2 साल भी रह सकता है, हो सकता है ज्यादा मुद्दत तक जो है बाद पैदा हो, तो तब तक ये वारिस डॉक्टर के हिसाब से कितने अरसे तक ज्यादा से ज्यादा देर हो सकती है? नहीं, ज्यादा बच्चा पेट में कितने अरसे तक रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितने अरसे तक रह सकता है? नहीं, ये तो आम आदत है ना, आम आदत है 9 महीने। कम से कम कितने अरसे रह सकता है? 6 महीने। कम से कम क्या है? कम से कम 6 महीने है उसकी मुद्दत, कम से कम 6 महीने है। अब ज्यादा की मुद्दत भी है, वो किताबों में या फिका की किताबों में ना ज्यादा की मुद्दत भी लिखी हुई है। तो नहीं, 10 नहीं है, वो ज्यादा है। तो अगर बहुत देर से पैदा हुआ है, अब इतनी देर तक विरासत को बाकी नहीं रख सकते हैं, उसको तकसीम करना है, तो फिर पेट में बच्चे का एतबार किया जाएगा, लड़के का, यानी लड़के का एतबार करके उस लड़के की विरासत अलग की जाएगी और बाकी वाली तकसीम कर दी जाएगी। लड़के की विरासत क्या की जाएगी? अलग की जाएगी और बाकी वाली तकसीम कर दी जाएगी। और अगर पैदा होने वाली लड़की थी तो लड़की कम विरासत लेती है, अगर उसने वो कम विरासत ली तो बाकी जो बचेगी वो बाकी विरासत पे फिर तकसीम कर देंगे दोबारा। हाँ, एहतियात के तौर पर वो बच्चे के, क्योंकि अगर जैसे बच्ची की हमने रखी, कम विरासत रखी और पैदा बच्चा हो गया, तो लोगों के पास से वापस तो नहीं ले सकते हैं, कौन देगा वापस फिर उसको? इसलिए क्या करेंगे? बच्चे की विरासत रखेंगे। इसलिए मरने वाला जो है, अगर उसकी बीवी के पेट में बच्चा है तो विरासत तो वो भी पाएगा। पैदा होना भी जरूरी नहीं है विरासत के लिए, लेकिन पेट में होना चाहिए। पैदा होना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ पेट में होगा तब भी क्या होगा? विरासत वो भी लेगा। तो यहां जो है ये बीवी को कितना मिल गया? रुबू। और यहां असल में हम देख रहे हैं अल्लाती बहन को कितना मिल रहा है? सुदुस मिल रहा है। यह सुदुस क्यों मिल रहा है? यह सुदुस मिल रहा है सुलुसान को पूरा करने के लिए। किसको पूरा करने के लिए? सुलुसान को पूरा करने के लिए। गोया एक हकीकी बहन है और एक अल्लाती बहन है। अब अगर ये तो एक हकीकी बहन कितनी है? एक। अगर यहां हकीकी बहनें 2 हो जाएं, हकीकी बहनें क्या हो जाएं? हकीकी बहनें 2 हो जाएं तो फिर इनको सुलुसान मिल जाएंगी। इनको क्या मिल जाएंगे? सुलुसान। क्योंकि अगर एक हकीकी बहन है तो निस्फ लेगी, और अगर 2 हकीकी बहनें या 2 से ज्यादा हैं तो फिर वो सुलुसान ले लेगी। लेकिन हमारे यहां सूरत मसला ये था कि हकीकी बहन 1 है, उसने निस्फ लिया, अल्लाती बहन 1 है, उसको सुदुस मिल जाएगा, और चौथा हिस्सा किसको मिल जाएगा? बीवी को मिल जाएगा। तो ये हो गई अल्लाती बहन। ये भी क्या ले रही है? सुदुस ले रही है। ये भी सुदुस लेने वाले नंबर 1 बाप। कब सुदुस लेगा? जब औलाद हो। मां सुदुस कब लेगी? जब मैयत की औलाद हो। और मां के लिए साथ में क्या है कि बहन भाई, वो भी अगर 2 या 2 से ज्यादा हैं तब भी इसको सुदुस में आ जाएगी मां। दादा सुदुस कब लेगा? जब मैयत की क्या है? औलाद हो और बाप ना हो। औलाद हो और क्या ना हो? बाप ना हो, तब ये सुदुस लेगा, वरना ये महरूम हो जाएगा। अखियाफी भाई अकेला है तो कौन सा हिस्सा लेगा? सुदुस ही लेगा। और कोई भी रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ अखियाफी भाई 1 है
तो क्या लेगा, सुदुस ही लेगा। ऐसा नहीं है कि उसी को सारी की सारी प्रॉपर्टी दे दी जाए, वो नहीं होगा, बल्कि इसको कितना मिलेगा, सुदुस ही मिलेगा। क्योंकि ये बाकी दूसरों से भी ले रहे हैं ना, ये अखियाफी भाई है इसका, तो बाकी इसका बाप होगा, इसकी माँ होगी, उसका इंतकाल होगा, बाकी रिश्तेदारों का, तो उनसे भी तो ये रिश्ता लेगा ये। लिहाजा अखियाफी भाई बहैसियत भाई सुदुस ले रहा है। अब ऐसा नहीं है ज़हन में कि भाई ये तो मिरास में सारे रिश्तेदारों में से सिर्फ ये कम ले रहा है, नहीं, ये तो अपने अखियाफी भाई की इतना ले रहा है। अब अगर इसका वालिद का इंतकाल होगा तो ये बेटा है, तो बेटे की विरासत लेगा। अगर माँ का इंतकाल हो रहा है तो ये बेटा है, बेटे के हिसाब से ये उसकी विरासत लेगा। इसके दादा का इंतकाल हुआ तो पोते के हिसाब से ये विरासत लेगा। इसका जो है हकीकी भाई का इंतकाल हुआ तो हकीकी भाई होने के हिसाब से विरासत लेगा। लेकिन यहाँ अखियाफी भाई का इंतकाल हुआ है, इसलिए अखियाफी भाई जो है वो उसका सुदुस ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। इसी तरीके से अखियाफी बहन एक है तो सुदुस, सुदुस से ज्यादा नहीं। दादी और नानी ये भी क्या करेंगी, छठा हिस्सा ही, सिर्फ सुदुस ही। और कब, जबकि मां ना हो, सिर्फ दादी है छठा हिस्सा, सिर्फ नानी है छठा हिस्सा, नानी और दादी दोनों हैं तो छठा दोनों में तकसीम होगा। छठा दोनों में क्या होगा, हाँ, दोनों में छठा हिस्सा तकसीम होगा। इसी तरीके से पोती, ये सुदुस कब लेगी, हाँ, जब एक बेटी हो, जब क्या हो, एक बेटी हो तो पोती क्या लेगी, सुदुस लेगी। अल्लाती बहन सुदुस कब लेगी, एक हकीकी बहन हो, एक क्या हो, हकीकी बहन हो तो अल्लाती बहन क्या लेगी, सुदुस लेगी, छठा हिस्सा लेगी। इतना आया समझ में अच्छी तरीके से। अब हम ये ऊपर वाला जो है आपने लिख भी लिया है, याद भी कर लिया है, इसलिए ये ऊपर वाला मिटाएंगे बस, ये भी, हाँ, ये परसों वाला जो है इसको हमने मिटा दिया। उसके बाद हमने ये, हमारे पास आगे हिस्से किसके, असहाबुल फुरूज थे। ये कौन थे, असहाबुल फुरूज थे। उसके बाद दूसरा नंबर किसका था, असबा। हाँ, असबा, हाँ हाँ हाँ, ये अरबी में लिखते हैं बिनफ्सिही, इसको कहते हैं यानी बजाते खुद असबा बना है वो, यानी वो अपनी जात से असबा है। असबा कैसे है, अपनी जात से। कभी असबा अपनी जात से होगा, कभी दूसरा बनाएगा उसको असबा। कोई रिश्तेदार असबा होगा अपनी जात से, कभी जो है कोई दूसरा उसको असबा बनाएगा। ये जो है बजाते खुद असबा है। और दूसरा है असबा बिगैरिही, इसके साथ में लगेंगे असबा बिनफ्सिही। बोर्ड पे वो कम है जगह इसलिए, वरना साथ में लिखेंगे आप, असबा बिनफ्सिही, असबा बिगैरिही। और तीसरा है असबा मा गैरिही, आप असबा भी साथ में लिखेंगे। ये जो असबा बिनफ्सी है, नंबर एक बेटा, नंबर एक बेटा। अच्छा, असबा किसको कहा था, असहाबुल फुरूज को देने के बाद जो माल बचता है वो असबा ले लेता है। असहाबुल फुरूज को देने के बाद जो माल बचता है वो क्या करता है, असबा ले लेता है। लिहाजा बहुत सारे असबात ऐसे होंगे जो दूसरों को महरूम कर देंगे, दूसरों को नहीं देने देंगे। कुछ में तकसीम कराएंगे वो, बाकी जो बचेगा वो खुद ले लेंगे, वो दूसरों को नहीं देने देंगे। जैसे बाप अगर मौजूद है तो दादे को नहीं मिल रहा था, क्यों नहीं मिल रहा था, बाप सारा ले रहा था, दादे के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो बाप असबा है, इसलिए दादा क्या हो गया, महरूम। अगर बाप असबा ना होता तो दादा महरूम नहीं होता। ऐसे ही असबात क्या करेंगे, दूसरों को महरूम भी करेंगे। इसलिए असबात किसको कहते हैं, बचा हुआ सारा माल ले लें। तो असबा बिनफ्सिही में नंबर एक बेटा,
नंबर 2 पोता, नंबर 3 भाई, बल्कि भाई से पहले अब लिखेंगे बाप, बेटा, पोता, बाप, दादा, कितने हो गए? 4 हो गए। भाई, भतीजा, चचा, चचेजाद भाई, ये 8 हैं। असबात कितने हैं? 8 हैं। नंबर 1, हाँ, असबा बिनफ्सी ही 8 है। नंबर 1 बेटा, नंबर 2 पोता, नंबर 3 बाप, नंबर 4 दादा, नंबर 5 भाई, नंबर 6 भतीजा, नंबर 7 चचा और नंबर 8 चचेजाद भाई। बेटा, पोता, बाप, दादा, ये तो 4 हो गए। भाई जो है ये बाप का बेटा है। भाई क्या है? बाप का बेटा है। आई बात समझ में? और भतीजा जो है ये भाई का बेटा है। भतीजा क्या है? भाई का बेटा है। और चचा जो है ये बाप का भाई है। चचा क्या है? बाप का भाई। और चचेजाद भाई जो है ये चचे का बेटा है। रिश्तेदारी भी ज़हन में आने चाहिए ना ये। अब जिसके ज़हन में रिश्तेदारी नहीं होगी वो समझेगा ही नहीं इस चीज को। तो बेटा, पोता, बाप, दादा, ये 4 तो वाज़ेह हैं, ये तो हर एक को पता है। अब ये भाई कौन होता है? बाप का बेटा। भाई कौन होता है? बाप का बेटा। और भतीजा कौन होता है? भाई का बेटा। भतीजा कौन होता है? भाई का बेटा। और चचा कौन होता है? बाप का भाई। चचा कौन होता है? बाप का भाई। और चचेजाद भाई ये कौन होता है? चचे का बेटा। आगे बात समझ में? ये 8 असबा बिनफ्सी ही है। ये 8 क्या है? असबा बिनफ्सी ही है। दूसरे नंबर पर है असबा बिगैरी ही। बेटी, पोती, हकीकी बहन, अल्लाती बहन। बेटी, पोती, हकीकी बहन, अल्लाती बहन, ये 4 के हैं असबा बिगैरी ही, यानी बजाते खुद तो ये असबा नहीं है, लेकिन दूसरा इनको असबा बना देता है। दूसरा इनको क्या करता है? असबा बना देता है। मिसाल के तौर पर हमने जो पहली मिसालें लिखी हैं उसमें यह था कि अगर बेटी है तो बेटी को कितना मिलता है? निस्फ मिलता है। पोती है तो पोती को कितना मिलता है? सुदुस मिलेगा, क्योंकि बेटी के साथ में है पोती, तो कितना मिलेगा? सुदुस मिलेगा। इसी तरीके से मरने वाली औरत थी तो उसका क्या है? शोहर। तो शोहर को कितना मिलता है? क्योंकि बेटी औलाद है, इसलिए शोहर को कितना मिलेगा? यहां रुबू मिलेगा शोहर को, यहां निस्फ नहीं मिलेगा बल्कि रुबू मिलेगा, क्योंकि मरने वाले की क्या है? औलाद है। आगे बात समझ में? इनमें हम देखें कोई बेटा है? बेटा नहीं है कोई भी।
बेटा नहीं। अब अगर जैसे हम यहां लिखेंगे बेटा, अब मरने वाले का एक बेटा है, एक बेटी है, एक पोती है, एक शोहर है, फिर क्या होगा? अब मसला अलग हो जाएगा, वो मसला नहीं रहेगा। अब जो है बेटी को निस्फ नहीं मिलेगा, पोती को सुदुस नहीं मिलेगा, शोहर को तो रुबू मिलेगा क्योंकि बेटा बेटी है, शोहर को वही रुबू रहेगा, लेकिन पोती महरूम हो जाएगी। और ये जो बेटी है, बेटी और बेटा, इनमें अब हिस्सा मुतय्यन नहीं होगा। अब क्या होगा? अब कुरान मजीद की आयत है जो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अब वो उसूल, वो कायदा चलेगा कि मर्द को दुगना और औरत को हाँ सिंगल, मर्द को डबल, औरत को सिंगल, वो कायदा चलेगा। लिहाजा जितने भी जो है प्रॉपर्टी है उसमें से शोहर को 100 में से कितना मिलेगा? 25। बाकी कितना बच गया? 75 बच गया। 75 के 3 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से किए? 3 हिस्से। उनमें से एक हिस्सा आ गया बेटी को 25, और 50 किसको आ गया? बेटे को। और शोहर को भी कितने हो गए थे? 25, क्योंकि उसका चौथा था, उसका मुतय्यना हिस्सा है। हाँ, बाकी सब खत्म। हाँ, अब देखो, ये इस बेटे ने आकर बेटी को क्या कर दिया? इसको असबा बना दिया। इसको क्या कर दिया? असबा बना दिया। इसको कहा असबा बिगैरिही। इसको क्या कहा? असबा बिगैरिही, यानी गैर ने आकर उसको असबा बनाया है। अगर ये बेटा ना होता तो बेटी को निस्फ मिलता है। अगर बेटा नहीं होता तो बेटी असहाबुल हाँ, बेटी असहाबुल फुरूज में से थी। अगर बेटा ना होता तो बेटी किस में से थी? असहाबुल फुरूज में से। लेकिन जब साथ में वो भाई आ गया, यानी बेटा यानी भाई आ गया उसका, तो बेटी क्या बन गई? अब असहाबुल फुरूज में से नहीं रही, अब वो बेटी असबा बन गई। ले असबा बिगैरिही, दूसरे ने उसको असबा बना दिया। तो मौलाना साहब, अगर इधर एक के बजाय ज्यादा बेटियां होंगी तो तब भी उनको सबको कानून ये वही चलेगा यहाँ। जैसे बेटा एक है और बेटी जो है वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो कानून वही ये चलेगा। नहीं, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन चलेगा। 25 ही नहीं सब में तकसीम होंगे, बल्कि वो चलेगा कि 2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा इस बेटी को भी, उसको भी 1 हिस्सा, 1 हिस्सा उसको भी 1 हिस्सा, इसको इस तरीके से किया जाएगा। जैसे मसलन हम कह सकते हैं 2 बेटियां 1 बेटा, जैसे मैं इधर से बता रहा हूं, जैसे 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटियां कितनी हैं? 2। इस पोती की जगह हम एक और बेटी लिख दें तो बेटी हो गई 2 और बेटा हो गया 1। अब जब तकसीम करेंगे तो शोहर को तो कितना मिला? पहले 25 मिल गया। अब जो बेटा और 2 बेटियां, इनका जो हिस्से हैं, अब वो 75 बाकी बचा था ना, 75 के 4 हिस्से करने पड़ेंगे। 75 के कितने करेंगे? 4 हिस्से करेंगे। उन 4 हिस्सों में से 2 हिस्से मिल जाएंगे बेटे को और 1 बेटी को, 1 इस बेटी को। 2 1 बेटे को और 2 बेटियों को, 1 करके। 37 उसको और 12.5 18.5 अब ज़हन में वो रखना है कि हिस्सा कैसा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो ज़हन में रखना है कि बेटे को क्या मिला? डबल मिला और बेटी को सिंगल मिला। अब जैसे मिसाल के तौर पर 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। 4 बेटियां हैं और एक बेटा है, तो कितने हिस्से करेंगे? शोहर को देने के बाद 6 हिस्से करेंगे। उनमें से 2 हिस्से दे देंगे बेटे को और 4 हिस्से दे देंगे 1-1 करके 4 बेटियों को। यानी 75 के कितने? 6 हिस्से करने पड़ेंगे फिर। तो इस तरीके से फिर जो है ये चलेगा। ये असबा बिगैरिही की वजह से है। असबा 2 नहीं होंगे। जैसे हम यहां भाई को लाएं तो भाई महरूम हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएगा। अब जो है इसीलिए बाप जो है, बाप यहां क्या है? सुदुस मिलेगा और बाप असहाबुल फुरूज में से आ गया यहां, और बाप असबा में से भी है। किस में से है?
اس لیے باپ اور دادا اسبا میں سے بھی ہے اور اہل اصحاب الفروض میں سے بھی ہے. اگر جیسے بیٹا ہے بیٹی ہے اور ساتھ میں باپ ہے, ساتھ میں کیا ہے, باپ بھی ہے, تو باپ اصحاب الفروض میں سے ہے, باپ کو کتنا ملے گا, سدس ملے گا, کیونکہ اصحاب الفروض میں سے ہے. لیکن بھائی اصحاب الفروض میں سے نہیں ہے, بھائی اصحاب الفروض میں سے وہ باہر ہو جائے گا پھر, کیونکہ جب انہوں نے لے لیا, بیٹے نے, بیٹی نے, انہوں نے, شوہر نے, باپ نے, انہوں نے لے لیا, باقی کچھ بچے گا ہی نہیں, بچے گا ہی نہیں, تو بھائی کیا ہو جائے گا, بھائی جو ہے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے اگر اسبا 2-3 جمع ہو جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اسبا اصحاب الفروض میں سے ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ اصحاب الفروض میں سے ہیں تو پھر تو اصحاب الفروض والا حصہ دیا جائے گا ان کو, اور اگر اسبا اصحاب الفروض میں سے نہیں ہیں تو پھر وہ اسبا کیا ہو جائیں گے, وہ اسبا نکل جائیں گے, پھر وہ محروم ہو جائیں گے, ان کو کچھ نہیں ملے گا پھر.